Let us discuss this problem in which we have to find magnetic field due to a rotating charged thin wall cylinder. It is a thin wall cylinder of say given radius r, and its length is known. It is carrying total charge q, and this charge is uniformly spread on its surface. It is given that about this axis, cylinder is given angular speed omega, and this speed is obviously maintained. What we have to find? We have to find the magnetic field at the center of cylinder under a condition L much greater than R, यानी ये length जो है, this length is much larger than R, and field we have to find at center. So here we should recall that the solenoid the case of solenoid, we know that if there is a long solenoid, first of all, I will explain why we should think of solenoid. In solenoid, we have circular currents, so many circular currents placed along the axis. You can feel like that. So here, once charges are rotating, they are producing circular currents like this. So this arrangement is very close to, very much similar to current carrying solenoid. And if we have a long solenoid, then in that special case, at the center, magnetic field comes out to be mu 0 Ni. This should be a known result. And this is popular result, we need not to derive here, we should know this result. What is meaning of Ni? Ni is basically current in unit length. Right? In fact, small n is the number of turns per unit length. So if we have say 3 turns per unit length, then I. We have 3I current in unit length. So Ni means total circular current in unit length, because N is the number of turns per unit length. So here, if we consider unit length, we will find the charge equal to capital Q by L. And we should know that if a charge is rotating, say Q charge suppose rotates in a circle with angular speed omega, then its time period will be 2 pi by omega. So we can say due to rotation of a charge, 2 pi by omega is time period. The equivalent current due to rotation of charge Q should be Q by T. Why Q by T? Because Q charge will complete the cycle in T times. So if any observer is standing on the circle, he will feel that in every time Q charge is passing in front of him. So per unit time, how much charge is passing? Q by T. Or we can replace 2 pi by omega in place of T. So equivalent current will be Q omega upon 2 pi. So here, this is Q per unit length. So we can say current per unit length, that is Ni, will be equivalent to Q by L, that is small q through unit length into omega upon 2 pi. So the required field V is equal to
mu 0 is smaller than I, so there will be q omega upon 2 pi L. Right? But this is true for long solenoid. Long solenoid means whose length is much larger than radius. That is the case here. So this answer, if we match, I think it will be C. Let us discuss problem of motion of charged particle in magnetic field. इसमें दिया क्या है कि there is uniform magnetic field of magnitude V applied in negative direction. अगर हम XY प्लेन ले लें इसे तो दोनों डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी. क्रॉस मीन्स डाउनवर्ड. In XY plane, a particle of mass m carrying negative charge of magnitude q is projected from origin with velocity u in positive y direction. So it is very basic problem. इसमें दिया क्या है माइनस एक नेगेटिव चार्ज है of magnitude q. It is projected along y with velocity u. And what we have to find? We have to find y coordinate and x component of velocity of time t. उसके चार ऑप्शन है. यानी इस तरह से फेंकने के t टाइम बाद इसकी जो y कोऑर्डिनेट जहाँ भी होगा, इधर होगा, इधर होगा, उधर होगा, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी बतानी है. नेग्लेक्ट ग्रेविटी, दैट मीन्स इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स केवल मैग्नेटिक फोर्स होगा. So here we should recall that if we project a charged particle perpendicular to magnetic field, it is bound to perform circular motion. अगर और कोई फोर्स नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी गई है चार्ज पार्टिकल को, तो इट इज क्लियर देयर विल बी सर्कुलर मोशन. ये रिजल्ट हमें पहले से पता होगा, ये पता होना चाहिए. और जो सर्किल होगा, सर्किल विल बी इन द plane which is normal to the magnetic field. ये जो सर्कुलर मोशन होगा, द सर्कुलर मोशन विल बी इन ए प्लेन. ये दो सिंपल कंक्लूजन लग रहा है बट वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कई प्रॉब्लम में बड़ा हेल्प करता है. इट इज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू, ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उसी प्लेन में सर्किल बनेगा. तो अगर ये सिंपल से रिजल्ट हमें दिमाग में है तो हमें ये मान लेना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चूंकि जेड के लॉन्ग है, से नेगेटिव रेट ऑफ जेड, तो सर्किल विल बी सिचुएटेड इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर दी गई है एक्स वाई प्लेन में. तो क्लियर हो गया. नाउ वी शुड थिंक ऑफ कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ सर्किल. मतलब किस तरफ होगा, ये ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, मतलब इधर तो खैर आ ही नहीं सकता तुरंत. तो अगर सर्किल बनना है तो अभी एक्स वाई प्लेन में तो या तो क्लॉकवाइज होगा ऐसे या एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो अगर लेफ्ट हैंड रूल लगा दें फ्लेमिंग का तो वी कैन थिंक ऑफ दैट इट विल बी क्लॉकवाइज. पर जो फोर्स आएगा स्टार्टिंग वो कुछ ऐसा आएगा इधर. जिधर फोर्स होता है सर्किल में वो डायरेक्शन सेंटर से पास होती है. कहीं भी सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा दैट विल पास थ्रू सेंटर. तो सेंटर इसी लाइन पे कहीं आ जाएगा, इसी एक्स एक्सिस पे. और क्लॉकवाइज क्यों होगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चेक कर सकते हैं. राइट. तो इफ वी कैन रियलाइज इट इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट टू इन क्लॉकवाइज सेंस, तो इसका कुछ इस तरह से होगा सर्कुलर मोशन.
सर्किल हैज टू बी इन एक्स वाई प्लेन। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ कहीं इसकी रेडियस होगी, सो हियर इट विल बी सेंटर, सॉरी रेडियस नहीं सेंटर। तो ये है मान लो आर, और आर में यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ एम यू अपॉन क्यू। आई प्रेफर कि सर एग्जाम में ये रिजल्ट हमें सर्कुलर मोशन कैमेटिक फील्ड में रेडियस याद रहनी चाहिए, रेडियस याद रहनी चाहिए, और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला वैसे डिराइव किया सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डिराइव कैसे होता है? सर्किल में जो इसकी वेलोसिटी होती है उससे हम सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। ये रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आता है? जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। यहाँ थीटा उटा इसलिए नहीं लिखते इस फार्मूले में, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है हर समय फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस प्लेन में रहेगी, फील्ड डाउनवर्ड है, तो यहाँ साइन 90 हमेशा आएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल कंक्लूजन। यहाँ से आसानी से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे एम बी अपॉन क्यू ई, और ओमेगा हो जाता है वी बाई आर, दैट विल बी क्यू बी बाई एम। तो फिलहाल ये दोनों मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ, रेडियस की वैल्यू भी। एंड वंस वी रियलाइज ये इस तरह सर्किल होगा, इसकी रेडियस पता है, ओमेगा पता है, तो टी टाइम बाद पार्टिकल सपोज सेंटर के अबाउट थीटा घूम गया, तो वाई कोऑर्डिनेट इज वेरी सिंपल। वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, दैट विल बी आर साइन थीटा। इस तरह से इस ट्रायंगल में देखें तो आर साइन थीटा प्रोजेक्शन, ये वर्टिकल, तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी आर साइन थीटा। आर हमारा है एम यू अपॉन क्यू बी, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी। थीटा लिखेंगे बट फिर उसको काट के ओमेगा टी लिख देंगे, दैट विल बी क्यू बी बाई एम इंटू टी, राइट। और वेलोसिटी कंपोनेंट थोड़ा केयरफुली देखते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट मान लो यहाँ है, तो ये ऐसे होगी वेलोसिटी, और ये डायरेक्शन रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी ऐसे दिखाएंगे रेडियस के परपेंडिकुलर। तो ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस से फिर ये एंगल बनाएगी 90 माइनस थीटा, तो इसको यहाँ दिखा दें हम लोग 90 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चेंज होती, वो यू की यू ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इट डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होती मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। सो स्पीड विल नॉट चेंज, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, स्पीड विल रिमेन सेम। इस वेलोसिटी का जिसकी वैल्यू है u, इसका x कंपोनेंट हमें चाहिए या, तो cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन हो जाएगी u साइन थीटा। थीटा है ओमेगा टी, ओमेगा है क्यू बी बाई एम, ओमेगा टी टी मल्टीप्लाई करती है। दोनों पार्ट ऑब्वियसली किसमें दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में। वेरी सिंपल, but sometimes people may mistake